मैं आपको ना एक मजेदार बात बताता हूँ. कपल बाइज अ 1 crore rupee हाउस and a couple has 1 crore rupee of mutual fund in their account. What will be celebrated by the society? Now you get the answer. पैसे के लिए कोई नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है तो कोई बिजनेस. पर क्या हो अगर पैसा आपके लिए काम करने लगे? आज हमारे साथ बैठे हैं संजय कथुरिया, एक डायनामिक फाइनेंस एजुकेटर एंड इन्वेस्टर who has attained financial freedom in just 10 years with this secret plan. You know what has been the highest growth rate in personal loans? कौन सी कैटेगरी में? Mobile phones? Vacations. Vacation? 90% of cars are sold on EMIs. In big billion days, out of every 4 products, 3 are sold on EMIs. आपने स्कूल 22 साल निकाला है, कॉलेज में इतना टाइम निकाला है, आज नेटफ्लिक्स पे 3-3 घंटे दे देते हो. Can't you spend like 15 minutes a day to learn about money? Someone with a starting salary 35-50,000. कौन से options हैं जिसमें ये invest कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? Assume your salary is 24,000. 1,000 रुपए को आप इन्वेस्ट करते हो. कैसे करूँ? निफ्टी 500 इंडेक्स है, उसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं. आराम से 1,000 रुपए डालते रहो. Owning a house या renting a house? Sanjay, so excited to have you here. मुझे इतनी सारी बातें करनी है, इतने सारे experiences share करने हैं. I think what's very interesting for me is कि आपने और मैंने शायद market same time पे enter किया था. Maybe 2005 or 6 में, yeah. you know, I think that's when I started my investing journey. When I left college, I took over the finance portfolio that my father-in-law had given me. Invest करना चालू किया एंड हमने दोनों ने एक ही फॉल देखा था शायद 2009 का, जिसमें मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. एंड यू नो व्हाइल आई केप्ट इन्वेस्टिंग पैसिवली, आई बिकेम मोर एक्टिव इन ग्रोइंग माई एजुकेशन बिजनेस. बट आई थिंक आपने उस टाइम डबल डाउन किया. And you know, you have a great story of growth, so I think there's so much that we can learn, and I would love to hear a lot more about it. Thank you, Divya. You know, so the first question I want to start is when we, and I'll talk about us versus say my current generation. हम एक ऑडियंस से आए हैं या एक एरा से आए हैं जहाँ पे एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एरा था, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट था कि सेविंग्स करो, अर्निंग शायद केवल एक थी, एक जॉब होती थी. सो देयर वाज दिस ह्यूज माइंडसेट ऑफ सेव. इतने ऑप्शंस भी नहीं थे. But now if I come to today's generation, my Gen Z, they have, you know, they're hustling, there's lots of income, but there's also a lot of consumption. Naya phone, naya juta. So I think they're torn between this old mindset of savings and spending. So what is the balance between the two? I think you use the right word, balance. मतलब they don't need to be torn, first of all. जो भी वो सैलरी कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, they can jolly well use it to enjoy also, and they can save, and they can, you know, take care of their basic expenses. The issue is evaluating yourself on the eyes of others on social media. जिसे आप FOMO कह सकते हो, for fear of missing out. So every time you see something on Instagram or social media, you want to use it बिकॉज कोई आपके दोस्त ने किया होगा या किसी और ने किया होगा. सो हमारी जो लाइफ की हैप्पीनेस, खासकर जेंजी की जो लाइफ की हैप्पीनेस का क्वोशंट है, इट इज इवैल्यूएटेड बाय समबडी एल्स. एंड यू नो आई सी अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डूइंग थिंग्स दे डोंट नो दे आर डूइंग, क्यों कर रहे हैं, बट दे विल डू इट. सो पीछे मैं जैसे लड़के से मिला, वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में गया, 3 लाख रुपए की टिकट लेके ब्लैक में. मेरा एक ही क्वेश्चन था, तूने कितने कोल्ड प्ले के गाने सुने आज तक? एंड द आंसर वाज 1 or 2. Well, then why are you going? Because everybody else is going. Wow. So when Backstreet Boys came to India last year, so I made it a point to be there, you know, the first row. Because मेरे लिए Backstreet Boys बहुत बड़ी बात है. मैंने उनको बचपन से सुनता आया हूँ. I'm sure you must have also listened to them. A lot of us have listened to them. Posters थे उनके हमारे घरों में. जोर जोर से गाने सुनते थे, lyrics लिखते थे उनके. So when you have that emotional connect and you spend to take that experience, it's worthwhile. आप भी enjoy करते हो, आपको वैल्यूएबल लगता है. अब एक व्यक्ति ने उसको पता ही नहीं है कि सामने परफॉर्म कौन कर रहा है, क्या कौन है वो, एंड देन यू आर पेइंग. सो आई थिंक अगर ये लोग दूसरों की नज़र से अपनी खुशी को ना इवैल्यूएट करें, दे कैन लिव अ हैप्पी लाइफ. सो दे शुड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 things which make them happy. See, 100 things can't make you happy. Then that means you don't know what your happiness lies in.
Like for one of my students, the happiness was to ride a Royal Enfield bike. तो मैंने उसको बोला कि भाई अगर वो आपके लिए हैप्पीनेस है, so why are you spending so much on weekends? Why are you going out like 3-4 times every week? Why are you eating out from Swiggy, Zomato so much? Just try to reduce these things. तो इससे आप एक्चुअली जो चीज़ आपको खुश करेगी उस पर आप पैसा डाल सकते हो. See, you have to understand money is finite. And money is finite for everyone. Right. ठीक है. Obviously, your age will come when you'll start making more money and then you'll get more space to enjoy. But आज जो आपके पास finite money है, उसमें आप अपनी priorities लिख लीजिए. Whatever makes you happy, be very clear on what makes you happy. And it couldn't be more than 4-5 things. That's it. Enjoy on them. Don't waste your money on other things. It's a beautiful way of saying it. And आपने बहुत 2-3 बहुत interesting बातें की हैं. Is how we want to do things क्योंकि कोई और कर रहा है दिखाने के लिए. Also, you know, these quick apps, Swiggy, Zomato, online food ordering, हमारे फ़ोन पे है, हमारे UPI से कनेक्टेड है, हमें दिखता भी नहीं है कि क्या पैसा है, क्या जा रहा है. So, you know, like in there's something like when you have to actually pay, जब आपको अपना वॉलेट निकाल के कैश निकाल के फ्रिक्शन देना पड़ता है तो फिर you know सोचते हो कि अच्छा do I really need to spend 100 rupees on that cup of coffee या you know घर पे पीते हैं. So you know a lot of this frictionless movement of money में also हमारी awareness ख़त्म हो गई है. You know, and we were just talking about this कि even in investing जितना हम देखते हैं वो frictionless. So what is your take on you know using your UPIs and other devices when we're spending money? See, मैं मानता हूँ कि humans अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते. It is almost close to impossible to control. तो हमें ना उस पर फोकस नहीं करना चाहिए because it leads to guilt, it leads to depression, it leads to a lot of other things. इससे अच्छा ना कुछ रूल्स बना दो. So I think when you become very rule oriented, then you don't do things. जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होंगे. तो पीपल वुड नो कि ये रूल है, मतलब सुबह 9 बजे आना है, पंच करना है, तो दैट्स अ रूल. 6 बजे जाना है तो दैट्स अ रूल. इट्स मतलब यू हैव टू पंच एट दैट टाइम. सो यूपीआई के लिए रूल बहुत सिंपल है कि यूपीआई कैन नॉट बी लिंक्ड टू योर मेन बैंक अकाउंट. Interesting. Yeah. So wherever you make money, you can't have a UPI link to it because then you have access to all the money which is available there. So instead of that, just create another bank account and put that money into that bank account. So let's say you're making 50,000 a month. उसमें से आपने 5,000, 10,000 रुपीज जो आपका स्पेंड होना चाहिए लॉजिकली वो उठा के नए बैंक अकाउंट में डाल दिया. नाउ यू नो कि मेरे पास 10,000 ही अवेलेबल है. अब आप फ्रिक्शनलेस पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ऑन द बैक ऑफ योर माइंड यू नो यू ओनली हैव 10,000 रुपीज अवेलेबल विद यू. So if you start automating things, if you start putting rules to finance, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा. फिर फ्रिक्शन हो ना हो उससे मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है. इफ़ योर थिंग्स आर रूल बेस्ड. सो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि योर इनकम अकाउंट, योर एक्सपेंस अकाउंट एंड योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. जस्ट हैव 3 बेसिक अकाउंट्स विद यू ऑल द टाइम. So income, expense and investment. So everything gets bifurcated. So income आई, इनकम से पैसा चला गया आपका इन्वेस्टमेंट में. इन्वेस्टमेंट से आपको क्या क्या करना है? आप हो सकता है रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग योर इमरजेंसी फंड, यू आर पेइंग योर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, यू आर पेइंग योर व्हाट डू यू से, यू आर पेइंग, यू आर डूइंग योर SIP. एंड इवन आफ्टर दैट इफ द मनी इज लेफ्ट यू कैन जस्ट कीप इट पार्क्ड इन सम FD या कुछ बॉन्ड्स में ताकि आपको स्ट्रेस ना हो और आप बाद में उसको यूज़ कर सको. और एक्सपेंस अकाउंट में उतना पैसा डालो जो आपको डेली एक्सपेंस के लिए चाहिए पूरे महीने में. यू नीड 10,000, पुट 10,000. And your major expenses, like which are fixed in nature, rent, EMI, electricity expenses, that can be put from the main account. That's not a problem. I think that's lovely. And आपने almost you've answered one of my questions, which was actually कि you know as a person starting out their job, first salaries, अपना काम चालू कर रहे हैं और उनको अपनी इनकम मैनेज करनी है तो कैसे अपने को मैनेज कर सकते हैं. सो आई थिंक यू हैव गिवन मी द बेसिक फ्रेमवर्क कि उसमें आप 3 जगह पे डालो. एक जगह अपने एक्सपेंसेस डालो, एक तरफ अपना इन्वेस्टमेंट डालो एंड देन यू पुट योर सेविंग्स. नहीं, मेन अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, मेन अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. Yes. सो आई वुड लव टू नाउ ड्रिल डाउन अ लिटिल बिट कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है एंड यू नो समवन विद अ स्टार्टिंग सैलरी 35-50,000 तो ये कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज़ योर व्हाट वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि यार सबसे पहले तो इसमें करेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये? So I believe that you need to think of life in buckets. And see, rich people or people who have wealth, they don't focus on multiplying wealth. They first focus on preserving wealth and managing risks.
तो दिव्या, ब्लैक रॉक के जो चेयरमैन है लैरी फिंक, ही यूज्ड टू वर्क इन अ हेज फंड and he created a lot of wealth, and suddenly one of the crashes he lost everything and सारे उनके इन्वेस्टर्स के पैसे चले गए. तो उन्होंने उसके बाद थोड़ा सा he started deep diving कि गलती क्या हुई, and he understood that he didn't take care of the risks. Interesting. So then he started BlackRock, जिसका premise एक ही था कि हम सबसे पहले तो रिस्क मैनेज करेंगे. And Aladdin, which they have this AI tool which runs 30,000 simulations every hour on their portfolio. Really? या 30,000 स्ट्रेस टेस्ट ऑन देयर पोर्टफोलियो कि कल को अगर गोल्ड इतना गिर गया तो क्या होगा, स्टॉक्स इतने गिर गए तो क्या होगा. सो ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. Interesting. And people in India don't understand the importance of risk management. So when you're young, first protect all your risks because you have a lot of time to make money. Bhai, you're 22, 23, you still have an era to make money, And India, आप समझिए विकसित भारत 2047. Today we are in 2025. तो अगले 22 साल हैं आपके पास वहां तक पहुंचने के लिए, तो अच्छा टाइम है. यू कैन मेक अ लॉट ऑफ वेल्थ इन 22 ईयर्स. बट अगर आप प्रोटेक्टेड ही नहीं हुए, कोई एक लाइफ के इवेंट ने आपको बहुत पीछे कर दिया, तो देन योर वेल्थ विल कम टू नो यूज. सो 3 सीट बेल्ट्स यू हैव टू वेयर व्हेन यू एंटर द कार. फर्स्ट इज you have to protect yourself against income loss, which can happen anytime. COVID was the biggest example. तो income loss के लिए एक ही चीज होती है, you need to have a emergency fund. Right. 6 months you can start with and then build it up to 1 year. तो जितनी आपकी सैलरी है, जितने आपके खर्चे हैं. हाँ, not salary. जो आपका expense है. So if your income is 50,000, your expense is 20,000. So 20,000 into 6. Nice. 1,20,000 rupees you need to have just by the side in a fixed deposit. It's not put it in a liquid fund, mutual fund, ये सब कुछ नहीं. Pure FD. Fixed deposit. Fixed deposit. सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट जो लोग कहते हैं. Really? हाँ, because emergency fund है ना. You need it during emergency. Rather half of it have it at cash at home. Beautiful. Because देखिए, कोई इमरजेंसी आई, रात को 2 बजे आ गई, Right. तो तब आप क्या करोगे? तो एटलीस्ट हैव सम पार्ट ऑफ इट इन कैश एट होम. I'm so glad I have a financial advisor जो बोल रहा है कि fixed deposit में रखना चाहिए, and I think that is great advice. के यूज केसेस हैं. जी. मतलब people have abused fixed deposit like anything जी. over the last few years. जी. But there are certain use cases of fixed deposit, and the first big use case of fixed deposit is emergency fund. Beautiful. I completely agree. And it is linked to your account. You can swipe your card और वो वहाँ से वो भी हो जाता है आजकल, जैसे वो कहते हैं स्वीप इन स्वीप आउट भी हो जाता है. बहुत कुछ हो गया है विच यू कैन यूज. सो आपने सबसे पहले अपनी इनकम लॉस को प्रोटेक्ट कर लिया. सेकंड इज हेल्थ लॉस, कि कुछ गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हेल्थ खराब हो गई. हैव अ नाइस गुड हेल्थ इंश्योरेंस. अब यहाँ दिव्या लोग क्या मिस्टेक करेंगे पीपल से कि मेरी कंपनी ने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी टेक्स अ वेरी स्मॉल हेल्थ इंश्योरेंस विच इज 2 lakhs, 5 lakhs. इट्स नॉट इनफ नाउ डेज. छोटे से छोटा ऑपरेशन 5-5, 10-10 लाख का है. Second issue is that you have worked in your company for 15 years and now you resign. That insurance has no value. Nothing. No, nothing carries forward. तो खत्म हो गया, वो रिलेशन ही खत्म हो गया. पर जब आप प्रॉपरली हेल्थ इंश्योरेंस खुद से लेते हो, तो इन दैट केस योर हेल्थ इंश्योरेंस गिव्स यू नो क्लेम बोनस. So let's say you started with a 10 lakh rupee health insurance, it will come up to 30-40 lakh rupees because आपने कुछ क्लेम नहीं किया होगा. ठीक है, और वो खत्म नहीं होगी. तो इसलिए everyone, so if you have central government employee who's covered till death, ठीक है, no problem, then you are good. But for everyone else in this country, everybody should have their own health insurance. And you should have it for yourself, for your family, floater, everything, yeah, your kids, everyone. Your kids, yes. your Yes. everyone. Ideally 10 लाख से नीचे का नहीं होना चाहिए. और 10 लाख बहुत महंगा नहीं है. मतलब आपको लगा 10 लाख किसी को लग सकता है बहुत ज्यादा है. Hardly, I think a 500-700 rupee a month, maybe 1 or 2 And that Starbucks coffee. 500 rupees can save you from Biggest so much. exigencies of life. Sorry, I'm going to double down a little bit on this, Sanjay ji, because जो आपने बोला ना, I mean, I have met so many employees. I've run a startup companies, and हर जगह, as company employee benefit, हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं. health insurance देते हैं. But I think just because the company is giving health insurance doesn't mean That you don't take you yours. are covered. Yes. So I think that is a really important takeaway कि आपको अपना इंश्योरेंस तो लेना ही है. लेना ही है. ये Yes. 500 या 700 रुपए हैं जो आपको साइड रखने हैं. साइड रखने हैं. See, and that's where your risk management comes into play. Just imagine by paying for 1 coffee a month. Right. It's 1 coffee. आप Yeah, Starbucks जाओ या yeah, कहीं जाओ तो yeah, 500-700 रुपए तो it's ऐसे, gone. yeah. या फिर स्विगी से कुछ ऑर्डर करो, it's gone. Right? तो that way you're protecting yourself from such a big exigency. And third is your life insurance. Okay. But that is not for you, that's for your family. तो then you need to evaluate कि मेरी फैमिली को मेरे जाने के बाद कितना पैसा चाहिए. तो इसमें मेरा एक फंडामेंटल है, फ्रेमवर्क है, उसको मैं कहता हूँ लाइफ. Okay. So L stands for liabilities. So
वट एवर लाइबिलिटीज यू हैव, होम लोन, कार लोन, समझिए आपके पास 50 लाख की लाइबिलिटीज है, तो 50 लाख तो आपको इंश्योरेंस होना ही चाहिए. Second is I, which is for income. So if something happens to you, how many years of income you want to transfer to your family? So let's say you're earning 10 lakhs a year. So 10 into 10 आप कहते हैं 10 साल का मेरा इनकम जाना चाहिए मेरी वाइफ को. तो 10 into 10 1 crore हो गया. तो 1 crore वो हो गया. F is for future goals. So your kids are going to study, they're going to get married. So you want to leave 50 lakh rupees specially for that. तो वो आपने जोड़ दिया. तो now it's 2 crores. And E is for emergency. That you can add another 10-20 lakh rupees. तो नाउ यू नीड एन इंश्योरेंस ऑफ 2 crore 20 lakh rupees. दैट्स इट. इससे ज़्यादा का आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए. नहीं तो कुछ लोग होता है ना, वो कहता है अरे मेरे को तो 5 crore की इंश्योरेंस चाहिए, 10 crore की चाहिए. नहीं. इफ यू कवर दीज आइटम्स, सी, बिकॉज दैट इज द मिनिमम लाइबिलिटी विच यू हैव टू कवर इन योर लाइफ. Right. एंड इफ समथिंग हैपन्स टू यू, योर फैमिली शुड बी सिक्योर टू दिस एक्सटेंट. तो बस उतना करके जाओ एटलीस्ट. सो एज सिंपल एज. एंड इफ यू आर वेरी यंग, 30 years old, आई थिंक यू कैन गेट अ 2 crore cover for maybe what, 15,000 a year or 18,000 a year. Fantastic. So that's it. Just imagine in 2,000 rupees a month, give or take maximum, you're secured, covered. All your big risks of life are covered. और ये 2000 भूल जाओ कि वो आपकी है ही कमाई नहीं. है ही नहीं हमारे पास वो. Beautiful. मतलब that's really, I think that's my biggest takeaway today is कि, and for anyone listening, कि मतलब ये 2000 रुपए can actually protect your life. Yes. You know? And give you a psychological, this edge. Edge. कि भाई आई एम कवर्ड, आई डोंट नीड टू वरी नाउ मच अबाउट माई हेल्थ. ठीक है, आप करो हेल्थ वेल्थ पे जो करना है, बट इफ समथिंग हैपेंस टू मी, आई एम कवर्ड. इफ समथिंग हैपेंस टू मी ऑन माई लाइफ, माई फैमिली इज कवर्ड. इफ समथिंग हैपेंस टू मी ऑन माई जॉब, आई एम कवर्ड. जस्ट इमेजिन, इससे ज्यादा क्या रिस्क है लाइफ में. आपकी इनकम जा सकती है, आपकी हेल्थ जा सकती है और आपकी जान जा सकती है. देयर इज नो फोर्थ रिस्क ऑफ लाइफ. Beautiful. And and हम लोग हमेशा, like what you said, the minute we think of investing, हमारा दिमाग ना मल्टीप्लिकेशन में चले जाता है. राइट. बट आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि पहले अपना बेस लेवल सिक्योर करो, बिल्कुल. तभी आगे बढ़ सी, सकेंगे. व्हेन यू एंटर अ कार, आप सबसे पहले क्या करते हो? सीट बेल्ट. दैट्स इट. आप सबसे पहले घुसते ही तो एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखते. यू पुट योर सीट बेल्ट, यू गेट योरसेल्फ एडजस्टेड एंड देन यू स्टार्ट. And you don't start with the speed of 100, you start with the speed of 0, 20, 10, 30, 50, 70, and depending upon the road you change your speed. Right? Fantastic. So this is how you have to treat your life also. पहले अपने सीट बेल्ट पहन लो, फिर आराम से गाड़ी चलाओ, लंबा चलाओ बढ़िया से. Lovely. So पहले हमने अपनी सिक्योर कर लिया. Then where else will this money be going into? Perfect. Now L2, which is after this step, is पहली चीज देखिए, हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है. We were talking behind the camera that we got saved because हमारे पास वो फ्रिक्शन था. अकाउंट स्टेटमेंट ओपन करना एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन था. एक तो वो फिजिकल आता था, तो कहीं ना कहीं खो जाता था. कोई बोलता था लेटर साइन करो, इतना मुश्किल होता था at that point of time to even log into your account to see कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट. And everything was not consolidated. जी. कोई इस अकाउंट में इधर दिखेगा, ये अकाउंट इधर दिखेगा, अब तो सब कुछ एक जगह दिख जाता है. सो आई थिंक दैट लेड अस टू हैव रिस्ट्रेंट ऑन आवरसेल्व्स. तो क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं, तो हमारी बाइंग सेलिंग हुई नहीं, तो हम बच गए. बट दिस जनरेशन डजंट हैव दैट लीवे. दे स्टार्ट विद अ ऐप व्हिच गेट्स एवरीथिंग ऑन बोर्ड इमीडिएटली. तो द बेस्ट वे इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू फॉरगेट सम अमाउंट दैट यू आर मेकिंग दैट मनी. सो इवन इफ यू आर मेकिंग 25,000 a month, assume your salary is 24,000 a month, और इस 1,000 रुपए को आप इन्वेस्ट कर दो. अच्छा, अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? कुछ नहीं समझ आ रहा. हमारी देश की टॉप 500 कंपनीज हैं. 100 लार्ज कैप हैं, 150 मिड कैप हैं, 250 स्मॉल कैप हैं. जस्ट इन्वेस्ट इन देम. कैसे करूँ? निफ्टी 500 इंडेक्स है, उसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं. आप निफ्टी 500 के कोई भी म्यूचुअल फंड में आराम से 1,000 रुपए डालता रहो. दैट्स इट. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना. पहले आप इतना स्टार्ट करो टू बिल्ड योर हैबिट, क्योंकि लोगों की हैबिट नहीं बनती. आई टेल यू एन एग्जाम्पल. आई met a guy, COO of a company, earning 7 lakh rupees a month and running out of money by 25th of the month. Really? 7 lakh rupees a month के बाद वो 25th तक उसके पास पैसे नहीं बचते थे, फिर वो पर्सनल लोन लेता था. Now this is because he never developed a habit. तो अगर आपको लगता है ना कि मैं 25,000 रुक जाऊं, मैं 50,000 कमा लूंगा तो मैं पैसे डाल दूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला. 50,000 में आपकी प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, 1 लाख में उससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी. तो जैसे जैसे आप ज्यादा कमाओगे ना, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो जाएगी. बट इफ यू स्टार्ट विद अ हैबिट, देन यू विल सी द मैजिक. अच्छा ठीक है, मैंने तो 12,000 डाले थे, अब वो 15,000 हो गए. सो अरे हाँ यार, कुछ दिमाग लगाया नहीं था. दिस इज हाउ आई ऑल्सो लर्नड इन्वेस्टिंग. व्हेन आई सॉ आफ्टर 5 years दैट माई मनी हैड डबल्ड विदाउट मी डूइंग एनीथिंग, आई वाज वेरी हैप्पी. देन यू गेट मोटिवेटेड टू. मारवाड़ियों में एक कहावत है कि जब
गाड़ी के पैसे हो तब बाइसिकल खरीदना। परफेक्ट। तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि ये सेविंग्स की हैबिट अगेन 30,000 है सब स्पेंड होंगे, यू हैव टू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम दैट 30। आपके खर्चे बिल्कुल आपको रिड्यूस करके 15 तक लाना ले है, जाना पड़ेगा। with नहीं आप भूल जाओ, आप 30 को 30 मत रखो, आप 29 रखो। कोई व्यक्ति 15,000 कमा रहा है, आप भूल जाओ आपकी सैलरी 14,500 है। कोई 10,000 कमा रहा है तो आप समझो आपकी सैलरी 9,750 रुपीज है, बिकॉज 250 रुपीज से एसआईपी चालू हो जाती है। तो 250 रुपए डालो, एसआईपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप 250 करोगे, कल आपकी इनकम 10,000 से 20,000 होगी तो आप 2,000 कर लोगे, फिर 20,000 से 50,000 होगी तो आप 10,000 कर लोगे। पर वो हैबिट ही नहीं होगी ना तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, फिर तो आप कितना भी कमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो 50,000 पे भी फिर नहीं याद आएगा। नहीं याद आएगा, 7 लाख वाले को याद नहीं आया। That's such, I mean, really spot on. Yeah. So then you start putting it in a SIP. एसआईपी में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, एंड सिस्टमैटिकली जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। निफ्टी 500 परफेक्ट, टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया विल नॉट लेट अस डाउन ओवर लॉन्गर पीरियड, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट। अब हम आते हैं, वंस योर हैबिट इज बिल्ड, यू हैव अंडरस्टूड, देन एटलीस्ट लर्न अबाउट फाइनेंशियल यू नो इंडिपेंडेंस क्या होती है, आपको मनी मैनेजमेंट क्या होता है। आपने स्कूल 22 साल निकाला है, यू नो कॉलेज में इतना टाइम निकाला है, आज नेटफ्लिक्स पे 3-3 घंटे दे देते हो। कांट यू स्पेंड लाइक 15 minutes a day to learn about money? Divya, you know, when you're born, your parents, anybody's parents will leave them after a certain time. Right. ठीक है? Your spouse enters your life after 25 years, you know. So everybody's relation with their parents, with their spouse is limited. सिर्फ एक रिलेशन है जो पैदा होने से मृत्यु तक चलता है, और वो पैसे का रिश्ता है। The day you are born till the day you die, you have a relationship with money. You like it, you don't like it. You keep it, you don't keep it. वो रिश्ता रहने वाला है। चाहिए आपको, चाहिए आपको पैदा होने से लेके मौत होने तक, मरने के बाद भी चाहिए एक्चुअली, मरने के बाद भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसकी चाहिए, उसके क्रिया के लिए भी चाहिए। जी। सो इफ यू आर गोइंग टू हैव अ रिलेशनशिप विद मनी फॉर 70-80 years ऑफ योर लाइफ, अच्छा रिश्ता बना लो यार, लवली। है ना। तो अच्छा रिश्ता कैसे बनाओगे? जब आप उसको समझोगे, पैसे को, व्हेन यू विल हैव नॉलेज अबाउट मनी, हाउ मनी वर्क्स, हाउ मनी ऑपरेट्स, हाउ आई एम गोना इन्वेस्ट। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हमारे टाइम में मुश्किल था, पॉडकास्ट नहीं होते थे, क्लासेस नहीं होती थी, कोई सिखाने वाले नहीं थे, मेंटर्स ढूंढने पड़ते थे। पर आज ईजी है, यू हैव यूट्यूब, यू हैव पॉडकास्ट, यू हैव क्लासेस, यू हैव कोर्सेज, यू हैव बुक्स, यू हैव सो मेनी थिंग्स। एज सिंपल एज साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप स्टार्ट तो करो पढ़ना। I think that's a great read. I think Yeah. किसी को चालू करना है, and anyone who's listening to this podcast, Psychology of Money is definitely Perfect starting point. Perfect starting Perfect point. starting point. It's like written for 21st century. जी। So I would say then start learning about money. ठीक है? उसके बाद आता है next step, which is goal based financial planning. This is where people just miss out. Right. मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने बोला कि how much money do you need to retire? He said 100 crores. I said kindly define why 100 crores. क्या करोगे 100 crores से आप? नहीं सर, मेरे को एक बार लाइफ में 100 crores चाहिए। मैंने ठीक है, पर क्यों चाहिए? पहले ये तो बता दो, क्यों पैसा चाहिए 100 करोड़ आपको? नहीं सर, बस चाहिए। मतलब आपका खर्चा कितना है? बोलता है 50,000 रुपये महीना। मतलब 100 करोड़, जिस व्यक्ति का खर्चा 50,000 है, वो 100 करोड़ का करेगा क्या? Right. So you should know what is that golden number which you need to become financially independent. And financial independent इसलिए नहीं बनना है कि घर पे बैठ के कुछ काम नहीं करना है। Financial independent इसलिए बनना है ताकि आपको किसी और के लिए काम नहीं करना है। I became financially independent at 39. So I had decided I will be financially independent before 40. But you decided that, and what age did you decide? I decided when I first saw my returns after 5 years of investment, which was at the age of 28. 28 में आपने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को 39 पे रिटायर 40 करना तक रिटायर होना है, मतलब एंड यू हैड क्रिएटेड अ गोल दैट बाय दिस एज मेरे को ये पैसे इतना अमाउंट चाहिए। इतना अमाउंट चाहिए। और उसके लिए मैंने क्या क्या गोल्स बनाए? उसके लिए मैंने इनकम गोल्स बनाए। सी, बिकॉज इफ यू वांट टू रिटायर इन 12 years, तो यानी यू नीड टू इन्वेस्ट मोर, आपको ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। Right. अब ज्यादा पैसा डालने के लिए मुझे ज्यादा पैसा कमाना भी पड़ेगा। राइट। तो मैंने पूरा गोल बनाया कि मेरी ईयर 1 इनकम क्या होनी चाहिए, ईयर 2 क्या होनी चाहिए, ईयर 3 क्या होनी चाहिए, ईयर 5 तक क्या हो जानी चाहिए। अच्छा, अब ये इनकम चाहिए तो मुझे स्किल्स भी चाहिए, तो मेरे को कौन सी स्किल चाहिए इस इनकम के लिए, वो भी मैंने डेवलप करी। 5% ऑफ माई इनकम आई यूज टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ। आई वुड डू कोर्सेज, आई वुड गो टू कॉन्फ्रेंसेज, बुक्स पढ़ता था, उस सब में इन्वेस्ट करता था, फायदा मिल गया। सो व्हेन यू डू रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ योर लाइफ, it becomes, and you know what you're saying is so incredible. Anyway, I'm agreeing with you too much, but one of the questions I love asking students is,
आप अभी क्या कर रहे हो जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी. What skill are you investing in yourself so that you can become better at what you're doing? True. You know, I think even at this age, I think this weekend I was in Bangkok for the NAS summit. वो investors, creators का summit होता है. And my husband's like, what are you going for now? And I was like, no, but if I am a creator, मुझे सीखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आप कहीं पे किसी भी लेवल पे जाके स्टैग्नेट हो जाते हो until you taking that step back. And I think you've given a great number कि 5% अपनी इनकम का आप वापस डालो अपने अंदर. एब्सोल्युटली. एंड सी, इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स ना आपको कोई म्यूचुअल फंड देगा, ना आपको कोई ETF देगा, ना कोई स्टॉक देगा, ना कोई क्रिप्टो देगा. द बेस्ट रिटर्न्स आर द इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ. उससे अच्छा कोई रिटर्न्स ही नहीं है. सी, माई सैलरी वेंट अप 6 times in 6 years. Wow. एंड दैट कुड हैपन बिकॉज आई वॉज इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ. अगर मैं नहीं करता तो आप भी जानते हैं स्टैंडर्ड सैलरी इंक्रीजेज आर एट द रेंज ऑफ 10 to 20% एवरी ईयर, Right. मैक्सिमम. तो अगर मैं 10%, 15% भी ग्रो करता 6 years के लिए, आई वुड हैव maximum maybe doubled or 2.5 times my salary. But I went 6 times, and that was because I was spending more on myself, investing more on myself. तो मुझे आज लगता है शायद मैंने कम किया इन्वेस्ट. I should have invested more Even on more. myself. Yeah, maybe up to 10% I should have invested on myself. Second is, and these kind of things, you know, these are rules. जैसे मैंने बताया ना, रूल हो गया. अब मेरी इनकम अगर 40 लाख साल की हो गई तो 5% 2 लाख होता है. तो that means I can do advanced courses. Right. And you can invest. And just, I think what you're saying is interesting because, again, एक mindset रहता है a lot of times कि हाँ कंपनी करेगी. I'm just, you know, so a lot of people have this mindset कि अच्छा ना अब कंपनी हमारे को ग्रोथ देगी. True. And I feel like it's very interesting that be an entrepreneur yourself. सोचो कि मैं ही एक कंपनी हूँ, मैं ही एक बीइंग हूँ, अपने आप में इन्वेस्ट करो. एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो टू योर कंपनी एंड आस्क देम टू पार्टनर विद यू, बट इट्स so 5% rule, invest in yourself. See, and this is such a beautiful statement, and just imagine, मैं एक mindset की बात कर रहा हूँ. एक व्यक्ति ने 22 years education लिया, went to a company, and now that person is not ready to invest on himself. Right. Because अब उसको लगता है जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ. Right. अब तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ. Exactly. कंपनी को सेल्स बढ़ानी है तो कंपनी सेल्स ट्रेनिंग देगी, मैं क्यों जाऊँ एक अच्छे सेल्स इवेंट पे. एंड आई थिंक जब मैं CFA मैंने जब स्टार्ट करी, I didn't even go to my company to take reimbursement. Because मुझे पता था ये मेरे 40-50 हज़ार की reimbursement देंगे और एक बॉन्ड साइन करा लेंगे कि 3 साल तुम काम करोगे हमारे साथ. हो सकता है 50,000 मैं अगर इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे को अगली सैलरी 2 times की मिल जाए. एंड एग्जैक्टली वही हुआ. जैसे ही मैंने लेवल 2 क्लियर किया, माई नेक्स्ट जॉब वॉज ऑलमोस्ट 1.8 times माई एग्जिस्टिंग सैलरी. 80% हाइक मिला था मुझे व्हेन आई स्विच्ड माई जॉब्स. एंड सेकेंड इज कि आई थिंक पीपल now are looking कि मैं जॉब से क्या लूं. Nobody is going with a contribution mindset कि how can I contribute to this job. And trust me, जो लोग contribution mindset से जाते हैं, जो लोग इस mindset से जाते हैं कि मैं कंपनी में क्या ऐड करूंगा, वो आइडेंटिफाई होते हैं और उनको हमेशा बेटर रिवॉर्ड्स मिलते हैं. 100%. तो मुझे ऐसा लगता है कि योर एजुकेशन डजंट स्टॉप एट 22, इट स्टार्ट्स एट 22. सो प्लीज डोंट थिंक कि मैंने आज तक जितना पैसा खर्च किया था वो इनफ है. एवरी डे यू हैव टू लर्न. And I think that's where, you know, some of the Indian entrepreneurs are great. Right. जैसे मैं मुकेश अंबानी जी का भी पढ़ता हूँ कि he reads like a book or 2 every week. Bill Gates, he reads like 7 books every month. Right. Warren Buffett तो वो कहते हैं मैं 2-3 घंटे से कम पढ़ता ही नहीं हूँ आज भी. So if great people are doing it and achieving results, तो आपको तो कॉपी करना है ना. मतलब it is so simple, just copy them. And it's not that hard. And again, I just say it's what you're saying is about creating those habits. I mean, till date, dad will wake up, my father-in-law wakes up at 4 in the morning. और जितने न्यूज़पेपर्स आते हैं मतलब दिल्ली में, वो सारे हमारे घर पे आते हैं, वो सब पढ़े हुए होते हैं. And he is more updated on what is happening. He is more updated on skill में क्या हो रहा है, podcasting में क्या हो रहा है, you know, finance में क्या हो रहा है, than possibly I will be. True. And like I said, हम सोशल मीडिया पे solutions ढूंढते रहते हैं, but actually काफ़ी simple है. काफ़ी सिंपल है. मैं ना कोबे ब्रायंट का बहुत बड़ा फैन हूँ. One legendary basketball player, he died in the chopper crash. And if you look at what he says and his discipline, so people say that जब बाकी एथलीट्स प्रैक्टिस करने जा रहे होते थे वो प्रैक्टिस करके आ रहा होता था. मतलब जस्ट इमेजिन ही हैड अ हेड्स अप ऑफ 3 hours अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर इन दिस वर्ल्ड. और वो 3 घंटा फॉर अ स्पैन ऑफ 10 years
becomes such a big distance कि उसको कवर करना नामुमकिन हो जाता है. Second he said was कि if you really know what you want in life, the world becomes your library. तो it is very easy to understand things, only clarity is required कि आपको चाहिए क्या. Right. I think most of the Gen Z and a lot of millennials also, they don't understand उनको चाहिए क्या actually. What do they want out of life? मतलब वो एक ड्रीम है कि हाँ. 100 करोड़ चाहिए, क्यों, कैसे, कहाँ, कुछ नहीं पता. नहीं. कुछ अगर नहीं आप पता. एक्चुअली बोलो कि मेरे को What's the plan? व्हाट्स द प्लान, लाइक एट 50 और 40 मेरे को 50 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, दैट इज वे मोर अचीवेबल Absolutely. देन हैविंग गोल्स दैट यू विल नॉट Yes. मीट और So रीच. nobody is looking at the effort to put into that goal. It's good to have a goal. Great. 100 crore makes 100 crores. More than happy. But क्या आप क्या करोगे उसके लिए? What is your skill upgrade? आप कहाँ पे लेके जाओगे? And what is your back plan? Right. As I said, जब मैंने 5 करोड़ का नंबर लिया था, तो 5 करोड़ 12 साल में अगर मुझे करना है, तो उसका पूरा बैक प्लान अप टू द लेवल ऑफ मुझे क्या स्किल चाहिए टू इंक्रीज माई सैलरी भी थी. राइट. अब थिंग्स मे नॉट हैव गॉन अकॉर्डिंग टू प्लान, दैट्स नॉट इन माई हैंड. द ओनली थिंग इन माई हैंड इज कि मैं उसको करूं, मतलब जस्ट वो कर्मनिर्वाधिकारस्ते कर लो, मतलब कर लो, काम कर लो, फल आता जाए, आएगा नहीं आएगा. एंड सी इफ आई वुड हैव गॉन रॉन्ग, तो मैं शायद फाइनेंशियली फ्री 39 में नहीं होता, 42 में हो जाता. क्या फर्क पड़ता? नॉट अ बिग Not a big चेंज ऑफ लाइफ, राइट? सो आई थिंक ये कुछ चीजें लोगों को समझनी होंगी कि सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ योर लाइफ, जिस पे लोग आजकल टाइम नहीं दे रहे. So now we've talked about goal based. You've created a goal for yourself. You've gone back. You've started investing in yourself for the growth. What next? What next is risk management. Again, we come to risk. See, people undermine risk a lot. अब होता क्या है कि एक बंदा बोलता है मेरे को 3 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, तो वो उसको कुछ पैसे चाहिए. नाउ ही वॉन्ट्स टू हरिडली मेक मनी. तो वो क्या करेगा? वो देखेगा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं. तो अभी हिस्टोरिकली पिछले 5-6 साल में स्मॉल कैप्स हैव डन वेल, मिड कैप्स हैव डन वेल. तो उसको दिखेगा एक स्मॉल कैप फंड विच हैज़ गिवन 36% इन द लास्ट 3 years एवरी ईयर. तो बोलेगा यार ये फंड ले लेता हूँ, तो मेरे पैसे 36% से ग्रो होंगे. एक कैलकुलेटर आएगा, वो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेगा. तो उसको दिखा मेरे को 10,000 का SIP करना है. नाउ जस्ट इमेजिन इफ दिस गाय वुड हैव इन्वेस्टेड इन सितंबर 2024 इन अ स्मॉल कैप फंड, उसका रिटर्न्स अभी माइनस में होता. Interesting. ठीक है, क्यों? बिकॉज द मार्केट इज डाउन, स्मॉल कैप्स आर डाउन. सो दिस पर्सन डिडंट अंडरस्टैंड दैट दिस वाज 36% ओवर लास्ट 3 years. बट उसके पहले के 4-5 साल क्या सिचुएशन थी वो किसी ने वो नहीं आपने नहीं देखा. देखा. तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग गोल बेस्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रिलेटेड टू योर ड्यूरेशन ऑफ गोल. Interesting. तो अगर आपका गोल छोटा है, 3 साल से कम का है, तो आप इक्विटी में पैसा नहीं डाल सकते, या फिर बहुत कम डाल सकते हो, 10%, 20%. उसमें भी हाइब्रिड प्रेफर करो. बचा हुआ 80% शुड बी इन कॉर्पोरेट डेट, इट कुड बी इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इट कुड बी डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स. उनमें आप डाल सकते हो पैसा, पर आप इक्विटी में नहीं डाल सकते, बिकॉज 3 साल इज अ वेरी शॉर्ट टाइम. अगर मार्केट 3 साल रिकवर नहीं हुई तो आपका गोल खत्म, फिनिश. और आपका पैसा गया या कम गोल हो भी गया, नहीं achieve गोल हुआ. भी नहीं अचीव हुआ. क्योंकि उसको 36% रिटर्न चाहिए था, तो मिलेगा ही नहीं. नाउ एज यू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर गोल कि भाई 3 की जगह 7 साल होगा, तो आप अपने डेट को कम कर दो, इक्विटी को बढ़ा दो. एंड इफ योर गोल इज 20 years डाउन, तो आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना अच्छा है, बिकॉज 20 years इज अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर वॉलेटिलिटी. कि ऊपर चला गया, नीचे चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Nifty 50. If somebody would have invested 1 lakh rupees in Nifty 50 in 2005, give or take today वो 16 लाख रुपए होता. ठीक है. But there is another index called Nifty 500 Momentum 50, which identifies 50 momentum based companies. अब ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट. पर टाइम कितना है? 20 years है. The same 1 lakh in this fund would have been 76 lakh rupees. Wow. तो 1 का 16 अगेंस्ट 1 का 76. Wow. जबकि वो ज़्यादा, उसका डाउन साइड ज़्यादा रहा है, ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, पर उसके बावजूद भी उसने इतना बड़ा आपको डेल्टा दिया, अल्फा दिया जिसे हम कहते हैं. वो क्यों दिया? क्योंकि आपने उसको टाइम दे दिया. तो अगर बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो उसको स्ट्रेच आउट एटलीस्ट 10 years दो, 10 साल करो. अगर आपके पास टाइम कम है तो अपनी रिस्क कम रखो, को कम तो करो. उतना डेट की तरफ चले जाओ ज़्यादा. डेट, हाइब्रिड, फिक्स्ड इनकम, उसके बाद आपके लार्ज कैप,
Right. You So know? I think that's a really good way of looking at it. कि debt, फिर large cap, फिर mid cap, फिर small cap, then go up. Up to these momentum, super small cap, micro Right, cap. right. जितना ड्यूरेशन ज्यादा उतना ज्यादा रिस्क आप ले सकते हो. अभी भी चॉइस आपकी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आते बोलते हैं सर हम लोग ना 20 साल तो इन्वेस्ट करेंगे पर मेरा पोर्टफोलियो ना 10% से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए. तो इवन इफ दैट पर्सन होराइजन इज 20 years तो वो रिस्क ज्यादा नहीं ले सकता, फिर भी वो लार्ज कैप में रहेगा. क्यों? क्योंकि उसको वो देख ही नहीं सकता, ही कांट सी मोर देन 10% फॉल. Right. तो उसका 50% पोर्टफोलियो हमेशा डेट में रहने वाला और बचा हुआ 50% लार्ज कैप में रहने वाला है. सो इट इज वेरी वेरी इंडिविजुअल एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस. कि फाइनेंस इज नॉट फाइनेंस, एवरी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता इसमें. तो आपको अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने ड्यूरेशन के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है. और क्विक रिच कुछ नहीं होता, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मेक यू क्विक रिच. और रिस्क अगर आपको बहुत एक्सट्रीम रिस्क लेना है, टेक इट ओनली विद 5 to 10% ऑफ योर कैपिटल. लोग कहते हैं मेरे को क्रिप्टो में डालना चाहिए क्या पैसा? बिल्कुल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट पुट एवरीथिंग इन क्रिप्टो. Just because Bitcoin went from $200 in 2015 to let's say $120,000 in 2025, 10 साल में वो कितने टाइम्स हो गया? जो भी 100-600 Sanjay ji, I टाइम्स. had a friend who invested in Bitcoin और फिर उसकी की मिलती है हाँ, वो वॉलेट की, वो गुम गई. इट्स लाइक लूजिंग योर स्विस बैंक Yeah, पासबुक. so मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट तो आई थिंक 10x हो गई थी, बट anyway, मिल रही नहीं अब. अब Yes. it's gone. Anyway, so I think that is a Yes. huge increase, but उसमें the loss is also Yeah. the same. It's like going in a casino and gambling, right? तो आप 10% से कर लो, 10% से कर ली. 5 से कर लो. इफ यू आर ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है. पीपल थिंक कि मेरे को सब पैसे से रिस्क लेना है. हम लोग जैसे क्लास में ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाते हैं. अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी में भी रिस्क, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा. तो लोगों को लगता है हमारे को ना सबसे ज़्यादा रिस्क वाले में जाना है क्योंकि वहाँ ROI 6% मिल जाएगी. हम बोलते हैं भाई 70% ऑफ योर मनी शुड बी वेरी लो रिस्क Right. इन ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस इटसेल्फ इज वेरी हाई रिस्क. उसके अंदर 30% से आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो. तो रिस्क की ना लेयरिंग करनी बहुत जरूरी है. आप कितने पैसे से रिस्क ले रहे हो, कितने तक का रिस्क ले रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है. आप है ना अपने ओरिजिनल पैसे को देखिए, लुक एट इट दिस वे कि यू आर ईटिंग अ थाली. यू हैव दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलड, एंड यू हैव गुलाब जामुन ऑल्सो. ओके, यू कांट हैव अ थाली फुल ऑफ गुलाब जामुन. ठीक है, यू कैन हैव 1 गुलाब जामुन और 2 गुलाब जामुन एट बेस्ट. At best. That's such a beautiful analogy. कि तो आपको आपका न्यूट्रिशियस डाइट भी होगा और आपको स्वीट्स भी मिल जाएगा, which may not be best for your health, but ठीक है, एक खा लिया, 2 खा लिया. Same is with high risk investments, which could be investing in startups, AIFs, PMS, आपका अब SIF आ रहा है, which is again a very high risk investment. And इसलिए उन्होंने 10 लाख का मिनिमम कैप लगा दिया है कि उनको पता होगा जो 10 लाख डाल सकता है उसके लिए उसके पास पैसा होगा. अच्छा, तो वो डाल रहा है, वो Yes. कर रहा है. हो सकता है उसके पास 1 करोड़ होगा, वो 10 लाख रुपए इसमें डाल रहा है. Right. तो आपको ना रिस्क गुलाब जामुन की तरह लेना है कि डोंट हैव अ थाली फुल ऑफ गुलाब जामुन. Don't be greedy. And here I want to double down कि हमारा mindset, and I don't know why, is a very all or nothing mindset. Yes. And honestly, I think if I look back, ये शायद in the initial years ज़्यादा होता है, your 20s and your 30s. तो वो एक all or nothing mindset होता है कि मेरे को रिस्क लेना है तो सब कुछ दाव पे लगा देना. सब कुछ दाव पे लगा देता है. एंड इट्स ऑलमोस्ट, यू थिंक इट्स हीरोइक. आपको लगता है मैं मूवी का हीरो हूँ कि देखो मैंने इतना सारा रिस्क लिया है, बट आई लाइक इट्स फुलिश. Yes. राइट, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी, कोई रीजन नहीं है टू बी हीरोइक Yes. और ड्रामेटिक With your money. विद योर मनी. मतलब वो मूवीज के लिए ठीक है लेकिन अपने मनी के साथ आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज ब्यूटीफुल कि बी कॉशियस. आप Yes. इसमें पॉकेट्स में डालियो एंड प्ले द गेम. डाइवर्सिफाई, प्ले द गेम, enjoy that risk कि थोड़ा सा बढ़ गया तो उस पर थोड़ा किक भी आएगा कि हाँ इसमें वो भी हुआ, बट हैव दैट माइंडसेट कि चलो हम बचे हुए हैं. मैं ना आपको इसकी एक एनालॉजी देता हूँ कि ग्रीड ऐसी चीज़ है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल है. इन महाभारत धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब जिनको सबसे बड़ी पदवी दी गई थी धर्मराज की, when he entered the gambling part, when he entered the casino with others, he lost everything and he kept on losing. इस फ्रेम ऑफ माइंड को ना हम कहते हैं मेंटल फ्रीज. ये ना आपका माइंड फ्रीज हो जाता है राइट. एंड यू जस्ट टेंड टू कीप ऑन बेटिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव.
और ये अच्छों के साथ होता है, मतलब सोचो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हो गया, तो आप और मैं क्या है, मतलब हम लोग क्या चीज है, क्या चीज़ है, मतलब महाभारत हमारे को सिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी वाइफ तक को दाव पे लगा दिया। जस्ट इमेजिन एट दैट टाइम, जस्ट पुटिंग एवरीथिंग, अपना साम्राज्य दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, और उसके बाद वाइफ भी दे दी। मतलब इतना मेंटल फ्रीज हो जाता है लोगों को। सो आई थिंक व्हेन यू आर प्लेइंग, नो कितना कैपिटल से प्ले करना है। जैसे आई यूज्ड टू गो टू कैसीनो व्हेन आई वाज इन श्रीलंका, 2,000 रुपए श्रीलंकन लेके जाता था, विच वॉज इक्वल टू 1,000 रुपीज इंडियन। वॉलेट घर पे रहता था, हमें बताता था दिस इज 2,000 विल बिकम जीरो, और आई मे गेट समथिंग बैक, बस दैट्स इट। और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है, जस्ट हैव फन, मजा करो। 2,000 रुपए का मजा था ये बेसिकली। पर अगर ये मैं वॉलेट लेके जाता तो ये 2 का 10 हो जाता, 10 का 50 हो जाता, कार्ड होता तो पता नहीं और क्या हो जाता। हाँ, शायद बोरो भी हो जाता, क्रेडिट कार्ड डेट भी चल जाता हम पे। जी। सो आई थिंक ये रिस्ट्रेंट्स डालना, रूल्स डालना अपने ऊपर बहुत जरूरी है, कि जहां आपको पता है कि मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, वहां सप्लाई कट कर दो। डोंट हैव एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई देयर, कि पैसे की सप्लाई नहीं है मेरे पास तो कुछ कर ही नहीं सकता, कि ठीक है हार गए, पहले ही बैट में 2,000 हार गए, नो प्रॉब्लम, आओ घूमो फिरो, गेम्स देखो, खाओ पियो, फ्री ड्रिंक लो, घर जाओ, फ्री ड्रिंक लो, घर जाओ, कैसीनो फ्री देता सब कुछ। लवली। यू नो, आई वांट टू ब्रिंग इन दिस वन टॉपिक जो एक्चुअली मेरे को काफ़ी ट्रिगर करती है, एंड इट इज़ कॉल्ड EMIs। राइट, आई फील दैट टुडे इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, एंड यू नो आई थिंक बिग कॉर्पोरेट्स, वेदर आप फ़ोन बेच रहे हो, आईपैड बेच रहे हो, यू नो आज के दिन आई थिंक इवन मील्स एट्सेट्रा, आप मेम्बरशिप सब कुछ आप EMI पे डाल रहे हो, विच इज़ यू नो कि आप अभी कंज्यूम कर लो, बाकी पे करते रहना। A lot of times your credit card will be tied to it कि आपको सेविंग्स मिल रही हैं, सो एंड समटाइम्स इट माइट मेक सेंस, यू नो कि अच्छा आप ले लो क्रेडिट कार्ड पे, द रेट्स आर वर्किंग आउट। व्हाट इज योर टेक ऑन यू नो यूजिंग EMIs फॉर परचेजेस और लाइफस्टाइल और खर्चा? देखिए, अगेन नथिंग रॉन्ग, EMI इज अ ग्रेट टूल, एंड आई थिंक पीपल हु कैन यूज इट फॉर देयर फेवर तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड डेट एंड बैड डेट। राइट, गुड डेट इज व्हेन यू टेक डेट एंड यू क्रिएट समथिंग। आपने डेट लिया, आपने घर खरीद लिया, आपने शॉप खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, विच विल ईदर गिव यू सम कैश फ्लो और विच विल इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम, और इट विल गिव यू बोथ, दोनों भी दे सकता है। तो डेट इज अमेजिंग बिकॉज इट इज एनेबलिंग यू टू मेक परचेजेस विच यू कुडंट हैव मेड अदरवाइज। आज अगर मेरे को 5 करोड़ का घर खरीदना है तो मैं तो नहीं खरीद सकता, तो मेरे पास 1 करोड़ मेरा है, 4 करोड़ बैंक ने दे दिया, धीरे धीरे देता रहूंगा, मेरी एक इनकम है जो उसको सपोर्ट कर सकती है, और कल को कुछ हो गया तो घर बिक के मेरे को आई कैन नॉक ऑफ ऑल्सो। ठीक है, सो ठीक है जी, दैट इज परफेक्ट। बट देन देर इज बैड डेट, एंड बैड डेट इज व्हेन यू टेक लोन टू कंज्यूम, एंड लेट मी टेल यू, एंड डेटा इज वेरी शॉकिंग। You know what has been the highest growth rate in personal loans? कौन सी कैटेगरी में? I'm going to guess. Please. Mobile phones? Vacations. Vacations. Today people are taking debt for vacations. It's the highest growth category in personal loan today. Really? Yes. Vacations. आप Make My Trip पे जा रहे हो, बोलते हो मेरे को 40,000 की वेकेशन चाहिए, ठीक है, इसकी EMI हो जाएगी। So people are consuming debt for vacations. ठीक है, तो ये हो गया हाईएस्ट कैटेगरी। देन यू हैव योर नॉर्मल आईफोन्स, 70% ऑफ आईफोन्स आर सोल्ड ऑन EMI। Sorry, I just want to double down on that. 70% of iPhones are sold on EMIs. Yes. 90% of cars are sold on EMIs. And apart from that, in big billion days of these guys, out of every 4 products, 3 are sold on EMIs. So, which is definitely a scary situation. But अगर देखिए, it's like, you know, there are vices of life. किसी को अल्कोहल पसंद है, हम तो पीते नहीं, बट किसी को पसंद है फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट पर्सन ड्रिंक्स लाइक वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, तो उसने अपना वाइस भी पूरा कर लिया एंड कंट्रोल्ड भी रखा चीज़ों को। ठीक है, एंड ही वर्क्स आउट आफ्टर दैट, ही मेक्स श्योर कि यू नो ही गेट्स इट आउट ऑफ हिज सिस्टम, तो ये कंट्रोल्ड है। बट किसी को यार रोज ही बैठ के 3-4 पैग मारने हैं, तो देन इट इज नॉट गोना हेल्प दैट पर्सन। So what is a good rule for EMI? Perfect, that's a very good question. The good rule for EMI is your consumption EMI should not go beyond 15% of your take home income. Excellent. तो अगर आप 1 लाख रुपए महीना टेक होम लेके जा रहे हैं, राइट, तो आपका वो EMI 15,000 का ही हो सकता है। तो अब उसमें आप कुछ भी कर लो, या आप गाड़ी खरीद रहे हो, आप फोन कर रहे हो, आप वेकेशन पे जा रहे हो, वेकेशन से ऊपर आ रहे हो, तो 15,000 से ज्यादा नहीं you wouldn't spend. बिल्कुल। अब इसमें फायदा क्या होगा? इसमें 2 फायदे। अगली EMI तब चालू होगी जब कोई पिछली खत्म होगी,
which is great. That means you have knocked off one of your liabilities and you have space for other liability. And the other way you can take more liabilities by increasing your income, which is very good. करो भाई और इनकम बढ़ाओ अपनी. अगर आपकी 1 लाख की जगह 2 लाख हो गई तो 15,000 की जगह 30,000 रुपए खर्च करो. So look at life in proportions, not an absolute number. Absolute number का कोई वैल्यू नहीं है. You know, I start asking people that if I tell you I got 40 marks in mathematics, आप क्या फीडबैक दोगे? So some people says very bad. क्योंकि उनके माइंड में है कि मेरे को 100 में से 40 आया है. फिर मैं बोलता नहीं, मुझे 50 में से 40 आया है. तो that same 40 is now very good. Yes. 40 is the same. उसका कोई थोड़ी वजूद चेंज हुआ. 40 was very bad Yes. earlier. Now this 40 is very good. Right. Then I tell them that my average class, the other students in my class, the average score is 45. So the same 40 becomes very bad again. So right now you're at the bottom. Now I'm at the bottom. Right. But then I tell them कि last mathematics test I scored 35. तो दिल से very good, you have improved. तो same 40 अगर आप 4 अलग pretext पे डाल दो, context पे डाल दो, वो चेंज हो जाता वो चेंज हो जाता है. तो हमारे को कभी भी जो नंबर्स हैं उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना. कोई आके बोले देख मैं तो 1 लाख रुपए खर्च करता हूं, वो उससे पूछो तेरी इनकम कितनी है, वो बोलेगा मेरी इनकम 5 लाख है. तो बहुत अच्छा लड़का है यार भाई. पर यही बोले नहीं मेरी इनकम 70,000 है, मैं 1 लाख खर्च करता, तो गधा है. गधा है. तो यू हैव टू लुक एट प्रपोर्शंस. एवरीथिंग इज इन प्रपोर्शन एंड दैट्स व्हाई आई लव्ड योर क्वेश्चन कि कितना परसेंट होना चाहिए. वो 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए. नाउ ईदर यू नॉक ऑफ योर प्रीवियस EMI Right. and create space again, or you create space by increasing your income, which is both the cases you are a winner. That's excellent. So I think आपने finally you have taken my disdain for EMIs and you made it into something positive कि हाँ आपको इसको use कर सकते हैं. But like everything in life उसमें आप Have a rule. रूल बनाओ, अपने आप को बांधो और फिर उसको अपनी एडवांटेज की तरह यूज़ करो वर्सेस मेकिंग इट अ लाइबिलिटी. यू नो ऑल्सो बिकॉज आई हैव दिस थिंग कि जैसे ही आपकी EMI आ जाती है तो आप अपने फ्यूचर पे एक बर्डन डाल देते हैं. यू नो यू पुट अ बर्डन ऑन योर फ्यूचर सेल्फ कि अब आपको ये निभाना है. सो यू नो इफ़ यू आर अ पर्सन एंड यू आर वॉकिंग तो आपने एक स्टोन उठा लिया है, भार उठा लिया है. तो आप अपने को तो चला ही रहे हो, अपनी फैमिली को भी चला रहे हो, एग्जिस्टिंग को भी चला रहे हो, प्लस आप पास्ट का बोझा भी अपने साथ लेके जा रहे हो. I call it check how many days you are working for the bank. Interesting. So for example, your income is 1 lakh and your EMI is 50,000. That means 50,000 divided by 100 into 30 days. You are working 30 days. मतलब 4 दिन छुट्टी छोड़ दो. तो 30 days अगर आप काम करें तो यानी इस केस में 15 days you are working for the bank. So in life, start working for the bank as less as possible. Beautiful. तो आप 15 दिन काम करो, get it to 14 days, get it to 13 days, get it to 12 days. And anybody can improve their financial situation in not more than 6 months. Anyone, चाहे वो कितनी भी खराब हालत में हो, 6 महीने में वो अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल सकता है. बस कॉग्निजेंस आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक है, क्या गलती हो रही है, क्या चीजें इंप्रूव करनी है, एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. विद इन 6 months you can improve your financial conditions. मतलब rapidly. Very rapidly. Beautifully. And you know, just again, I feel sometimes the disconnect is कि जब हम चालू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा मेरी 50,000 है, मेरे को हम डायरेक्टली बोलते हैं हमें 1 लाख पे जाना है. एंड यू स्टार्ट डिसरिगार्डिंग द लिटिल स्टेप्स. यू नो आपको चेंज करना है तो इवन दैट 5,000 का डिफरेंस, 2,000 का डिफरेंस आपकी इनकम में, यू नो लाइक यू आर सेइंग थोड़ा सा सेविंग्स, थोड़ी सी अर्निंग्स, क्लासेस से कर रहे हैं, यूट्यूब, किसी चीज़ से भी जो भी आपकी अर्निंग है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है. यू नो बट समहाउ हमें वहाँ तक पहुँचना है विदाउट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप दैट वी आर वर्किंग ऑन. And I think you know when you start taking those steps you get satisfied कि मैंने कुछ किया, मैंने एक्शन लिया. See, action gives satisfaction. अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. एवरीथिंग इज अ मेंटल मैथ कि ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देन नथिंग इज गोना हैपन. वी कैन टेल यू व्हाट विल हैपन, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, बट करना तो आप ही को पड़ेगा. मेरे को भी किसी ने आके बोला था कि ऐसे ऐसे करोगे तो इन्वेस्टमेंट में अच्छा होगा, पर किया मैंने. अगर मैंने नहीं किया होता, प्रोक्रेस्टिनेट किया होता, तो शायद आज मैं वहां नहीं होता जहां मैं हूँ. मे बी और भी अच्छा कर सकता था, बट जहां भी पहुंचा, आई थिंक वी टुक एक्शन. एंड आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट टेकिंग एक्शन. They're just listening, but they're not taking action. So I would ask people to write down what actions they're going to take after this. एक होता है, you know, and one of the reasons that people say that they're not taking action is fear. कि डर लगता है कि no, क्या हो जाएगा. How do you deal with that? Baby steps. Baby steps. Create, I call it the 90-30-7 framework. First, create a 90-day goal.
ठीक है, देन क्रिएट अ 30-day प्लान एंड देन क्रिएट अ 7-day माइक्रो प्लान. ठीक है, इसे हम WBS भी कहते हैं जॉब्स में, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. Right. सी इफ यू लुक एट CEOs ऑफ द कंपनी, कितना काम होता है उनके पास, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. यू लुक एट द प्राइम मिनिस्टर, दे आर रनिंग कंट्रीज. Right. तो वो स्ट्रेस में रहते हो तो घूमते रहते हैं, वो इधर हैं कल को उधर है, कहीं कहीं फीता काट रहे हैं, कहीं कुछ अनाउंस कर रहे हैं, और पीछे पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है. बिकॉज देयर इज अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. तू ये करेगा, तेरा काम ये है, ऐसा है, वैसा. सिमिलर यू हैव टू डिजाइन फॉर योरसेल्फ. व्हाट इज दैट यू गोना अचीव इन 90 days? व्हाट इज योर गोल इन 90 days? Right. ठीक है, व्हाट इज योर फर्स्ट मंथ प्लान एंड व्हाट इज योर फर्स्ट वीक प्लान? लोग क्या होता है ना, 90-day प्लान बना लेते हैं पर उनको पता नहीं कि पहला स्टेप क्या और करना है. आज क्या करेंगे ना वो वो नहीं पता. लिखते. तो पहले 7-day प्लान बना लो और 7 day को फिर बाद में धीरे धीरे 1 day पे भी लेके आ जाओ. Right. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द इवनिंग रिफ्लेक्शन. अगर आपने पूरा दिन निकाल दिया है तो हैव यू स्टेप्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर गोल? एक ही क्वेश्चन पूछो अपने आप को रात को 10 बजे 11 बजे जब आप सो रहे हो. हैव यू स्टेप्ड 1 step फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर गोल? डिड यू टेक एनी एक्शन विच हैज टेकन यू टुवर्ड्स योर गोल? इफ द आंसर इज yes, great, have a good night's sleep, get back to work tomorrow. If the answer is no, please reflect and start making those changes from tomorrow. Let's start. तो जब आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हो तब आप अपने लिए एक पाथ बना पाते हो. पहले पाथ बना लो, क्वेश्चनिंग करो, रिफ्लेक्शन करो, दैट्स इट. दिस इज द फ्रेमवर्क. अब उसके बाद भी कोई नहीं करता तो आई थिंक इट्स नॉट इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट. I love that. आफ्टर दैट यू जस्ट, मतलब दैट मींस यू आर जस्ट वेरी लेजी टू. Lazy. So another big debate is owning a house या renting a house. Traditionally एक safety net चाहिए. And I mean I want to take both the mindsets, right? इंडिया में एक वो mindset है, घर है तो फिर stability है, security है, rent पे कौन रहता है, तो you know we need to get a basic house. अगर आप math देखेंगे and a lot of the corporate people, corporate gurus will say कि you know you're getting the house, इतना capital block कर रहे हो, इससे अच्छा आप invest कर सकते हो, rent कर सकते हो, flexibility है आपको movement की. From a financial perspective, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ना लाइफ के डिसीजंस को 2 तरीके से देखता हूँ. या तो फाइनेंशियल होता है या मनी होता है. फाइनेंशियल इज प्योर प्ले एक्सेल, कि भाई नंबर्स क्या बोल रहे हैं. तो नंबर्स तो फेवर नहीं करते घर खरीदने के लिए. They do not दे feel डू नॉट फेवर बाइंग Right. हाउस. because द वेरी सिंपल रीजन इज कि आपको रेंटल यील्ड इंटरेस्ट रेट से कम पे मिलता है. तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 8-9% चल रहा है, आपका रेंटल यील्ड 2% चलता है. And then all the hassle which comes along with managing a property, obviously that is there. And the third is, see, let's say I am 23-year-old and I take a house. So one, I have blocked my capital. Second, I have taken a burden, ठीक है, which could have been replaced by something which was more variable. Third, now I cannot shift my lifestyle for next 20 years. I can't shift my lifestyle, ठीक है. हाँ, अगर मैं रैपिडली बीच में कमाने लग जाऊँ तो हो सकता है मैं नॉक ऑफ कर सकता हूँ डेट को जल्दी. But right now I have taken that stress. But you have to reinvest in yourself. You had to become better. You had to go to conferences. You get married. You want to travel with your wife. जाके घूमना चाहते हो. You have cut down everything. एक couple, मेरे दोस्त का भाई, शादी हुई. And good families, affluent families. Mother, father of both boy and girl, they contributed something and they said, घर ले लो. ले लिया जी. दोनों इनकम कर रहे हैं अच्छी खासी, 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं मिला के. And they took a house which was 3-bedroom hall kitchen. Now you take a 3-bedroom hall kitchen, your EMI increases, your maintenance increases, your electricity fixed cost increases. आपकी घर की बाई ज्यादा पैसा ले लेती है because she has to clean 3 rooms. three Yeah? rooms. Everything सामान is- और चाहिए. सामान और चाहिए आपको, 2 बेड एक्स्ट्रा, 1 दो बेड bed एक्स्ट्रा चाहिए, एक पूरा रूम right. एक्स्ट्रा भरना है आपको. Now just imagine they are under so much stress that almost 65% of their income is going in EMI. Young couple, अभी शादी हुई, मतलब तुम्हारे को घूमना था, फिरना था, मस्ती करनी थी, ये क्या 2 बेडरूम ले लेते, Right. है ना. तो एंड यू नो व्हाट वाज द रीजन दे गेव मी? अगर दोनों पेरेंट्स एक साथ आ गए तो हमारे को 2 कमरे चाहिए हमारे को थे, 2 तो कमरे हमने चाहिए उनके थे. लिए मतलब वाह यार, तुम इतने अच्छे हो गए कि तुम अपना रूम भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. I love this about India. हम अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर दोस 2 days, फॉर दोस मे बी 2 Maybe 2 days, days, yeah. जो शायद कोई हाई लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, लो प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है. बट हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे क्योंकि हम तो उसकी भी नहीं थी. यू आर सो राइट. हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो कुछ होता ही नहीं. हाँ, प्लस मेरी कंपनी ने लेके रखा है ना. कंपनी ले Husband wife के दोनों ने company एंड लेके अगेन आई थिंक दिस इज अ साइकोलॉजी दैट पीपल हैव कि एवरीवन फील्स कि मैं आउटलायर हूँ. मतलब दिस इज अ साइकोलॉजी, दिस इज अ बुक आई वाज रीडिंग वेयर दे से दैट एवरीवन फील्स मैं आउटलायर हूँ. मतलब अपुनिश भगवान है. हाँ, मेरे साथ तो कुछ कुछ होगा होएगा ही नहीं, पड़ोसी के साथ होएगा. we always think that we are the outliers. True. So I मैं love आपको ना this. एक मजेदार बात बताता हूँ.
I'll give you two scenarios. A couple buys a 1 crore rupee house, ठीक है, on debt, and a couple has 1 crore rupee of mutual fund in their account. मतलब mutual fund account में 1 crore rupees का fund है. What will be celebrated by the society? Now you get the answer. The house. Yes. The house. The debt will be celebrated. Right. Can you imagine? कि घर खरीद लिया, बड़ी अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है भाई. हम सिक्योर हो गया बच्चा. सिक्योर हो गए. लेकिन हमारा, again, I think this is something, even in finance, like so many times, you know, there'll be a fundraise and people will be celebrating it. And I'm वापस भी करना है. I'm like, पैसा रेज किया है, अब कुछ बनाना पड़ेगा, फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा. हम वो नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम फंड रेज सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? मेरा एक फंड मैनेजर फ्रेंड था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे लोग, एंड ही गेव अ वेरी लार्ज लोन आउट टू वन ऑफ दीज गुड डेवलपर्स. आई कॉल्ड हिम, आई सेड भाई कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस ग्रेट डील. 300-400 करोड़ की डील थी. ही सेड संजय कांग्रेचुलेट मी व्हेन द मनी कम्स बैक. अभी तो गया है जेब से. अभी तो गया है, तो खर्चा किया है. So I think just imagine how the society is working. We are celebrating debt against somebody who has equity lying in the mutual fund account, which is so liquid, can be taken out right now, immediately in 1 second. And this debt has to be repaid for next 20 years. And this guy can go for his holidays. सब कर सकता है. सब कर सकता है. उसको रिटर्न मिल रहा है, उसको इनकम मिल रहा है. Yes. लेकिन But this is not getting celebrated. this is not good. I think we need to change things which get celebrated, first of all. तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है. सो आई थिंक दिस इज हाउ सोसाइटी फंक्शंस इन इंडिया. एंड कुछ लोग इसके प्रेशर में आएंगे, कुछ लोग रिबेल करेंगे. मेरे घर पे भी अभी भी रिबेल चलता है. मेरे मदर इज लाइक व्हेन यू बाय अ हाउस, व्हेन विल यू बाय अ हाउस. मतलब ठीक है, करेंगे, खरीदेंगे, किसी दिन तो खरीद ही लेंगे. सो या that's I so money decision are the decision which you take emotionally. So one side is financial. Now financially it doesn't make sense. मनी से होता है जब आपका इमोशन आ जाता है बीच में, और मैं उधर कुछ, दैट इज नॉट एन एरिया वेयर आई वांट टू एंटर, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को एयरपोर्ट पे भी लोग पकड़ बोलते सर क्या आप घर नहीं खरीदने देते. मतलब यार मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला. मैं सिर्फ तुम्हें बोला इक्वेशन के हिसाब से ले लो. सो लाइक यू आस्क्ड कि बैड डेट कितना होना चाहिए, गुड डेट भी एक लिमिट पे होना चाहिए, which should not be more than 40% of your take home income. And ideally in this 40% आपकी EMI, आपके घर का मेंटेनेंस और बेसिक यूटिलिटी बिल्स जुड़ जाने चाहिए. बिकॉज क्या होता है, लोग स्ट्रेच करते हैं 50%, 55% कि भाई EMI दे दूं, और जब वो घर के अंदर घुसते हैं और जब उनको मेंटेनेंस का बिल आता है, जब उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तब उनको लगता है यार ये सब तो हमने फैक्टर ही नहीं किया था, अब ये कहाँ से दे दें. तो ये जाता है वो पैसे से जो आपकी वांट्स का पैसा था, आपके घूमने फिरने का पैसा था, ट्रैवल करने का था, या फिर आपको कोई कॉन्सर्ट में जाना था, वो वहां से चला जाता है. And that pinches because then you start living like a pauper, कहते हैं ना, एकदम गरीब की तरह रहने लग जाते हो आप. फिर बोलते हैं नहीं यार मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को तो ये चला जाता है, मैं तो खर्चे होते हैं. आपने बजट नहीं किया, आपने एंटिसिपेट नहीं किया. अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स कितना बजट करते थे. वो जाते थे तो इवन राशन लेने जाते थे, उनको पता होता था मेरे को क्या 10 चीजें लेके आनी है. टुडे व्हेन वी गो टू परचेज राशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करते नहीं, जेप्टो से कर लेंगे या ब्लिंकिट से कर लेंगे. बट अगर हम चले भी गए बाय मिस्टेक, देन ऑल्सो वी आर सो इंस्टिंक्टिव कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं. हम सोच नहीं रहे हैं. हम सोच रहे नहीं है. हम लोग डिसइल्यूजनड हो गए हैं कि यार बस लेना है, बिकॉज दैट ऐप हैज सेंट अ मैसेज कि 4 बजे समोसा खाओगे क्या, तो खाना है मेरे को. अरे क्यों खाना है, उसका काम वो कर रहा है, आप अपना काम मत, जस्ट डोंट डू दिस. You know, again what you said is beautiful कि जब आपके पर लोन आ जाता है, डेट हो जाता है, आप जब आप बोलते हो खर्चे नहीं मीट हो रहे हैं, सो आपका माइंडसेट भी एक अबंडेंस और ग्रोथ माइंडसेट से एक स्कैर्सिटी माइंडसेट आ जाता है. सो जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने उसके लिए क्रिएट और अकाउंट नहीं किया है अपने लिए. आपको एक एनालॉजी देता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, द मनी आई यूज्ड टू मेक, I couldn't buy the house I was staying in. मेरे फादर का घर है बॉम्बे में, तो मुझे इतना लोन भी नहीं मिल सकता था कि मैं वो घर खरीद पाऊँ. एंड इट्स अ 2-bedroom हॉल किचन इन बॉम्बे. टुडे इन द सेम लोकेलिटी विद द रिवाइज्ड प्राइसेस आफ्टर 20 years, I can buy 2 or 3-bedroom houses without taking a loan. Wow. I'm not boasting. What I'm trying to communicate is कि वो घर की वैल्यू, अच्छा इन 20 सालों में मैं भी बाहर रहा हूँ, मैंने रेंट भी दिया है, सब कुछ किया मैंने लाइफ को एंजॉय भी किया है, मैंने गाड़ी भी खरीदी है, मैंने सब कुछ किया है, ट्रैवल भी किया है. वो सब करने के बावजूद आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसी लोकेलिटी में जहां मैं 2 bedroom नहीं खरीद पा रहा था,
अब मैं 3 बेडरूम खरीद सकता हूं बिना लोन के। तो पिछले 18-20 साल में क्या ज्यादा ग्रो किया, घर की वैल्यू या मेरी वैल्यू? एंड द आंसर इज मेरी वैल्यू। अगर मेरी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं बड़ा घर खरीद पाऊंगा ना। अगर अंबानी जी का घर $2 बिलियन का है तो यानी उनकी वैल्यू $2 बिलियन से ज्यादा होगी, तभी तो वो $2 बिलियन का घर ले पाएंगे। सो फर्स्ट इंक्रीज योर वैल्यू, देन गो फॉर दीज वैल्यूएबल्स कि चलो ठीक है हम कुछ घर ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो डिसीजन अगेन स्टेज द सेम फॉर मी। फाइनेंशियली इट डजंट मेक सेंस, it's a lot of load, but if it's a money decision, do take it, but understand कि 40% से सब कुछ कम रखो। So I call it the total cost of ownership. घर की total cost of ownership को 40% से कम रखो, which is your EMI, your maintenance and your utility bills. इन तीनों को जोड़ दो, आपकी इनकम का 40% से कम होना चाहिए। Fantastic. Thank you so much, Sanjay ji. I have learned so much in this session. I think what's been really interesting about, our conversation today, कि हमें अलग अलग पीस में ये सारी एडवाइस मिलती है कि EMI करो नहीं करो, ये करो नहीं करो, बट वॉट you've given me is a blueprint कि क्या करना है, कितने % पे करना है, कब करना है, एंड you can literally do everything as long as you're making the rules and making sure you're following Absolutely. it. You can enjoy, you can create wealth. I'll give you a very interesting example of long-term wealth creation. I'll give you 2 examples, okay? One example is a mutual fund launched in 1995. And this is the power of staying consistent. HDFC Flexi Cap. अगर आपने उसमें ₹1,000 का SIP किया होता, for 30 years, you would have invested 3,60,000 rupees. The value of that is around about 2.2 crores today. Wow. ठीक है? Is 1,000 rupees difficult, at least in today's day and age? I don't think so. ठीक है? Now let's come to Warren Buffett. 1965 से उनका फंड चालू हुआ है, से लेके 2025, 60 years. The same 1,000 rupees you would have invested for 60 years. आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होता 7,20,000 rupees. Any wild guesses what would be the value of that money today? Oh God. 100 crores? 700 crores. Wow. 7,20,000 rupees gets converted into 700 crores. अब आप बोलोगे 60 years कोई ठूस, भाई मैं कह रहा हूँ कि ₹1,000 तो छोड़ ही सकते हो 60 years के लिए। It's not that big. It's not that big. ₹500 छोड़ दो, चलो 360 करोड़ क्या बुरे हैं? जी। ठीक है? And I'm not saying 360 होगा, कुछ मैं कहता 50 होगा, 30 होगा. This is extra free money. And this has come without you putting any effort. तो trust the process, stick for long term. Short term में markets में emotional rides आएंगी, ups and downs आएंगे. And this 60 years of Warren Buffett has seen everything: recession, deep recession, great growth, crashes, bubble bursts, 2008, 2020, 2000.com. एवरीथिंग देखने के बाद ये हालत है। तो लाइफ डजंट गो लीनियरली, ठीक है, कि ऐसे ही जाएगी, ऊपर नीचे होगी, बट ओवरऑल डायरेक्शन इफ इट इज पॉजिटिव देन यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। Great. Thank you so much, Sanjay ji. It's been fascinating and lovely having this conversation with थैंक you. यू दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। Pleasure. So, finance is actually very close to my heart. Is जैन है ना, तो वैसे ही मालबाड़िया, या लेकिन हमारी कंपनी है, my family company is Safe Express. जी मुझे पता चला, राइट। So I am currently, I've just taken over the corporate portfolio, the family portfolio. नाइस। I used to be in finance when I started as a financial trader in Citigroup. Then I started investing, and 2009 के crash में I lost a lot of money. When I was very young, I was 23. I think my father-in-law gave me 2 or 3 crores. He's like, चलो अब तुम ये इन्वेस्ट करो। तो वो 3 के मेरे पास 1.5 बच गए थे। I was so petrified. I kind of sort of then shifted into education and I started building Safe Educate. Maharashtra में there is a trader, they make underwear for women, and वो 600 crore की company. You know what I mean? It's ridiculous. So this guy who's 8,000 crores is Ayurveda company. Patel Retail is coming up with IPO. They have retail stores only in tier 3. Right. And today is their first day of subscription. Yesterday, sorry, was the first day of subscription. They're 6.4 times oversubscribed. I started in 2006. At that point of time, मतलब अकाउंट स्टेटमेंट देखने के लिए ना वो पूरी एक Hassle था। ट्रैक होती थी बड़ा कि सही। फोन पे लॉग इन करो, पासवर्ड डालो, ये डालो, एक अकाउंट इधर, वो अकाउंट इट लाइक Been there, done that. you didn't know कि कहाँ पे क्या डाला हुआ है। But I think that friction caused us to stick with our investment. Right. And now it has become a habit. Inactivity leads to returns.
So What? Like, let's have this conversation. Sure, That is super.